solubility in water. Then after chemical properties, we had discussed what are the chemical properties which are shown by aldehyde and ketone. In this, we have started the first, that is nucleophilic addition reaction. In nucleophilic addition reaction, first of all, yesterday we had completed the mechanism, and we had completed one question, that which one is more reactive for nucleophilic addition reaction, aldehyde or ketone, and why. So anyone please unmute and tell me, is screen and voice both are clear so I can start the class? Yes, Anyone? sir. Yes, sir, Both it are is clear. clear. Yes, sir. Okay, thank you. If any problem will be there, then inform me. So now we need to discuss the nucleophilic addition reaction. In nucleophilic addition reaction, there are some reaction, that is addition of HCN, addition of NaHSO3, sodium hydrogen sulfide, addition of alcohols, addition of ammonia and its derivative. This one is very important, and one more is there, addition of hydroxylamine NH2OH. So first is here, that is addition of hydrogen cyanide. Simple, same what you have seen in द मैकेनिज्म में जो आपने देखा वही प्रोसेस यहाँ पर होगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी ब्रोकन डाउन. प्रोसेस में सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, दैट विल बी ब्रोकन डाउन. ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. देन न्यूक्लियोफाइल HCN. HCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है? दिस HCN will be broken down into H plus and CN minus. H plus move with OH, that is base, because the reaction is takes place in any basic solvent, so that will be go with the base. And then after CN, which is nucleophile, as the name it is there, that is nucleophilic addition. Nucleophilic addition means nucleophile will be attacked for addition reaction. So first nucleophile has attacked to form an intermediate complex. एक intermediate complex बना रहा है, and then after the H plus will be attacked, then it form the final product. So in your NCERT book, the reaction is not given in this way ki what is the mechanism. In your NCERT book, the reaction is given, this one is written plus HCN is written here, and then after product is directly written. So whatever you want, if you want to write in this way कि mechanism way कि what is happening in the process actually, how the CN minus is formed, how the CN minus is attracted, why it's called nucleophilic addition reaction. If you want to keep this in your mind, then you can write in this mechanism way. And if you want, just write in the way as in NCERT is given, this one plus this one to give this one. And the product is called cyanohydrine. Remember, when you will see the exercise of this chapter, the first question is there. सबसे पहला क्वेश्चन है, explain the following terms. Explain the following terms. उसमें आप सर्च करेंगे 13-14 टर्म्स दिए हुए हैं, एक है साइनोहाइड्रीन. सो दिस क्वेश्चन कैन बी कम. ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज साइनोहाइड्रीन. साइनोहाइड्रीन होता क्या है? सो यू विल से व्हेन एल्डिहाइड and ketone react with HCN, then it form an addition complex. जब एल्डिहाइड या कीटोन HCN से रिएक्ट करता है, सो एक एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, सी कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म बाय एडिशन रिएक्शन, दैट्स बाय एडिशन कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन, जिसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन? इसको साइनोहाइड्रीन कहते क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप. जैसे आप कह रहे थे इनॉल, इनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है, इन और ऑल. सो साइनोहाइड्रीन क्यों कहते हैं? नाम में ही है साइनोहाइड्रीन. इट हैज टू फंक्शनल ग्रुप. साइनाइड ग्रुप से साइनो आया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रीन बना. सो साइनो
hydrine. So when any aldehyde or ketone react with HCN, then it form an addition complex. That addition complex is called cyanohydrine, and then you will write this equation that aldehyde or ketone plus HCN gives cyanohydrine. So this is the first reaction. Maybe the question will be there कि cyanohydrine is formed by nucleophilic addition, electrophilic addition, free radical addition, or nucleophilic substitution. Then it is formed by nucleophilic addition reaction. Formation of cyanohydrine is showing that the compound is having aldehyde or ketone. That's why this reaction was in glucose and fructose. इसलिए ये रिएक्शन किस में था, ग्लूकोज फ्रक्टोज में था. ग्लूकोज में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन विथ HCN, तो बताया गया था दिस रिएक्शन प्रूव दैट इट हैज एल्डिहाइड और कीटोन. नाउ नेक्स्ट, that is addition of hydrogen, sodium hydrogen sulfide NaHSO3. This is also in same manner. ये भी ठीक उसी तरह से होता है. First of all, the bond will be going to be broken down. Here NaHSO3 will be broken down in this way. So it form Na plus HSO3 minus. This HSO3 minus. Now please switch, mute your mic. Whose mic is there? Girish sir, Jai Hind. Acha, Jai Hind Prabhas sir. Jai Hind Prabhas sir, sorry for that. I forget. So Prabhas sir. I was actually. Sir, Yes, Jai yes, Hind sir. sir. There was a simple announcement. It will take only 1 minute, sir. Jai Okay, Hind. okay, sir. I'm just stopping my presentation. Okay, sir. Okay, sir. So all children, very good morning and Jai Hind everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, there is a group discussion which has been planned by Sunbeam School Lahar Tara. Okay, and that will be continued for 24th and 25th September. So I want you all to tell that there is a GD group discussion will be going on. So if whoever is interested, you can please send me your name on my personal number. I will leave my number in the chat box also. How many of you are interested? Could you please raise your hand? Praveen Chaunan, okay. Purushottam, okay. Anyone else? Everyone, please participate. Whatever will be happen, that is no matter. Please Beta, try to participate. I will try to give you whatever I know. I will try to provide whatever skill is most important. Remember, आपको सब कुछ आता है लेकिन आप दूसरे के सामने नहीं बोल पाओगे, then all thing will be going to be waste. So please participate. It's my request. Everyone, whatever 23, 24 students are there, everyone please raise your hand. Okay, so I'm noting down these 5 names. So please send me on my personal number. I will share in the chat box. There would be competition. Your competition would be from Sunbeam Bhagwanpur, Sunbeam Lahar Tara, Sunbeam Sun City, and all the core Sunbeam Varuna, means all the core branches that we do have. Okay, beta. So it would be, the competition would be very nice, and I hope you will love it. So 5 students had raised hand, sir. मैं इन 5 बच्चों का नाम लिख दे रहा हूँ. मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, सर. Sir, okay, sir. I will provide your number. Sir, 12th on their WhatsApp group. हाँ, sir. Please send into 12th A group because I'm not added over there. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Sir, thanks a lot. Welcome, sir. Continue, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. So again, I'm going to share my screen. Please. Anyone unmute and tell me, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so I'm going back on my presentation. So we are discussing the second one, that is
addition of sodium hydrogen sulfite. See here, sodium hydrogen sulfite, SO3, not SO4, in the same way. First of all, NaHSO3 will be broken down in Na plus and HSO3 minus, and the aldehyde of ketone, whatever is there, the double bond present between C and O, that will be broken down to give oxygen negative charge, because this is heterolytic fission. Heterolytic fission hoga, oxygen get the negative, carbon get the positive, and as you know, positive move at negative, negative move at positive, because this is addition reaction, though no displacement will be there, only addition. So Na plus will be attack at oxygen and HSO3 minus will be attack at carbon. So see the product, HSO3 comes in attached with carbon, Na attack at oxygen, so it form a complex, that is addition complex. But this addition complex is, this is addition complex, this addition complex is unstable, it is unstable, ये unstable होता है, and to make this more stable, to this product, इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स टेक्स प्लेस between Na and H. H move at place of Na and Na comes at the place of H. So what is happened by this? After this exchange, the product is containing the OH and OH, means now this product is able to form the hydrogen bond. अब ये प्रोडक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, because it is, hello sir, why it is unstable? Because here, see, here is the charges are present, oxygen is forming coordinate bond and another side it is forming the ionic bond. So one coordinate bond, one ionic bond. So due to this ionic bond is weaker bond, इसलिए यहाँ पे ionic bond weaker हो जाता है, and after coming here it form OH. So both are becomes the covalent bond. And also one another information, it can form the hydrogen bond also. ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी अब बना सकता है, प्रीवियस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता था, बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच विद सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर से अटैच है, एंड हियर इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो एज यूजुअल बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज, physical state will be becomes more harder, so all these properties are improved, that's why it becomes more stable. तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. डेट्स वाई द रीअरेंजमेंट, जो आपको रिएक्शन बताया गया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सो द सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड इलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट होता है, एंड वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट दिस. हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है, ना कि ये. दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. सो इफ यू वांट यू कैन राइट डायरेक्ट दिस वन, but if you will write direct this one, then you will miss the process. आप यहाँ पे process छूट जाएगा आपका कि it will give the Na plus or H plus. So it will give the Na plus and by the exchange it form the OH. Is that clear? Hello? Yes sir, clear. Yes, sir. Okay. Okay. So this is, ठीक है, this is the addition of sodium hydrogen sulfide. Another, addition of alcohol. Now addition of alcohol, this is another important part. ये फिर से एक important part है, and one mistake is written in this file. इस फाइल में एक mistake है, mistake is here. This is called hemiacetal, and here it is also mentioned hemiacetal, but it is acetal. इसको कहते हैं acetal, hemiacetal दोनों नहीं है, ठीक है. Now what is addition of alcohol? So first of all remember this, addition of alcohol is takes place with aldehyde and ketone in two different way.
एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल जो है दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. फर्स्ट we will discuss the reaction of alcohol with aldehyde. Then second we will discuss the reaction of alcohol with ketone. So remember this, alcohol जो है HCN is reacting with aldehyde and ketone in both the same manner. That's why only one reaction is here. NaHSO3 is reacting in same way. That's why one reaction is there. But alcohol react with aldehyde and ketone in two different way. दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. That's why here aldehyde का रिएक्शन अलग दिया है और कीटोन का रिएक्शन ये अलग दिया है. Now see, aldehyde means reaction of alcohol with aldehyde or addition of alcohol with aldehyde. So addition of alcohol with aldehyde completes in two step. अल्कोहल के साथ जो एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है. इन फर्स्ट स्टेप व्हेन एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड डायरेक्ट लिखा है, कीटोन यहाँ नहीं है. एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एनी एल्कोहल, किसी एल्कोहल के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है. व्हेन एनी एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एल्कोहल मीन्स एल्कोहल से रिएक्ट करता है. एंड रिमेंबर दैट एल्कोहल मस्ट बी मोनोहाइड्रिक. दिस इज द डिफरेंस. Aldehyde react with monohydric alcohol. I think you remember this term. Monohydric means having one OH group. Dihydric means having two OH group. Polyhydric means having more than two OH group. सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. So alcohol is reacting with monohydric alcohol. Aldehyde is reacting with monohydric alcohol, and ketone is reacting with dihydric alcohol. ये डिफरेंस है. कीटोन डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट करता है एंड एल्डिहाइड जो है वो मोनोहाइड्रिक से रिएक्ट करता है. इसलिए दोनों अलग अलग. रिमेंबर दिस. क्यों अलग अलग है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर है. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ड्राई HCl मतलब HCl गैस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. HCl गैस के प्रेजेंस में देन इट फॉर्म, तब ये क्या बनाता है. इन द सेम वे, फिर उसी तरीके से बॉन्ड विल बी गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड हियर एल्कोहल विल बी ब्रोकन डाउन इन दिस वे. दैट इज आपको पढ़े थे आपने कि एल्कोहल रिएक्ट एज टू. One is as acid due to cleavage of OH bond. Second is as base due to cleavage of CO bond. So here the bond cleavage is OH. यहाँ पे जो bond cleavage होगा वो क्या होगा, OH bond cleavage होगा. OH bond cleavage. So it form, ये क्या बनाएगा, that is RO minus and H plus means alkoxy. That alkoxy RO minus will be attack at carbon positive charge and H plus attack at oxygen. H plus ऑक्सीजन पे अटैक करेगा क्योंकि H plus पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड RO निगेटिव आ रहा है, तो ये कार्बन पे. सो सी, RO कार्बन से अटैच हुआ, H ठीक है ऑक्सीजन से अटैच हुआ. सो इट फॉर्म एन एडिशन कॉम्प्लेक्स. ये एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है. दैट एडिशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड हेमी एसिटल. तो जैसे यहाँ पे साइनोहाइड्रिन था वैसे फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू विल सी इन एक्सरसाइज तो उसमें हेमी एसिटल भी लिखा है. व्हाट इज हेमी एसिटल. हेमी एसिटल क्या होता है. सो यू विल से व्हेन एल्डिहाइड, only aldehyde not ketone, when aldehyde react with monohydric alcohol in presence of dry HCl gas, means dry HCl का मतलब गैस की बात हो रही है. so HCl gas, then it form an addition complex which contain, ये एक addition complex बनाता है which contain one alkoxy group and one alcoholic group, जिसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है. सो इट बिकम्स एल्कोक्सी एल्कोहल. एल्कोक्सी एल्कोहल मतलब एक एल्कोक्सी ग्रुप है एक एल्कोहलिक ग्रुप है. दिस
एल्कोक्सी एल्कोहल इज कॉल्ड हेमीएसिटल। इसी एल्कोक्सी एल्कोहल को कहा जाता है हेमीएसिटल। इट इज एन इंटरमीडिएट। नाउ if we provide some more number of molecule of alcohol to this, अगर हम यहाँ पे कुछ और एल्कोहल प्रोवाइड करते हैं, अगर 1:1 का रेशियो है, एक पार्टिकल इसका है एक पार्टिकल इसका है, तब तो हेमीएसिटल बनाएगा। बट इफ वी विल प्रोवाइड द मोर अमाउंट ऑफ एल्कोहल, अगर हम और ज़्यादा एल्कोहल प्रोवाइड कर दें, देन दिस विल बी अंडरगो, अब ये फिर से रिएक्शन करेगा। एंड फर्स्ट वन रिएक्शन वाज एडिशन। पहला रिएक्शन क्या था? एडिशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड विल बी सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड एडिशन नहीं होगा, सेकेंड विल बी सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। इन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाउ RO will displace the OH। RO एल्कोक्सी ग्रुप OH को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट बिकम्स 2OR। मतलब दो एल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है फर्दर रिएक्शन विथ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इट गिव डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। डाई एल्कोक्सी कंपाउंड and that is geminal dialkoxy compound. I informed you vicinal and geminal, मैंने वो हैलाइड में बताया था, जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, सेम टर्म यूज होता है बाकी सब में भी। तो यहाँ पे एट द सेम कार्बन बोथ द एल्कोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, एक ही कार्बन पे दोनों एल्कोक्सी ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। एंड दिस डाई एल्कोक्सी कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल। हेमी एसिटल नहीं कहते हैं, सी एसिटल, ये एसिटल आप लिखेंगे, हेमी एसिटल नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ सी addition of alcohol, your heading will be there. In this you will write aldehyde and ketones are react with alcohol in different way. First of all, addition of alcohol with aldehyde, then you will write when any aldehyde react with one molecule of monohydric alcohol, monohydric बहुत important information है, in presence of dry HCl, then it form alkoxy alcohol as an addition complex. This alkoxy alcohol is called hemiacetal. So if the question will be there in your board कि what is hemiacetal, तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं in the same way, or in your own language you can write hemiacetal is an addition complex which form by the addition of monohydric alcohol with aldehyde. It contain the one alkoxy group and one alcoholic group. इसमें एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है, एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है। नाउ आगे लिखेंगे when this hemiacetal again react with one more molecule of alcohol, then it give geminal dialkoxy compound. This geminal dialkoxy compound is called acetal. इसको कहते हैं acetal. This term is also there in first question कि what is acetal? Acetal क्या होता है? Maybe in MCQ the question will be there. Which of the following is acetal? Geminal dialkoxy compound, geminal dihalide, vicinal dialkoxy compound, vicinal dihalide. So your answer will be there geminal dialkoxy compound. पहले तो डाइएल्कोक्सी है, दो एल्कोक्सी ग्रुप है, उसमें भी जेमिनल कंडीशन वाले, विसिनल वाले नहीं. So this is the addition of alcohol. First step is addition, second step is ठीक है substitution. Now see in this double side arrow is written, what it means that you know, means this reaction is reversible. ये reaction reversible है. So make your confusion clear, make your doubt clear. How you will write? See, इस HCl गैस को आप यहाँ लिख दीजिएगा, that is ROH in bracket HCl gas.
और जो रिवर्स रिएक्शन होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl। तो HCl का दो नाम है, रिमेंबर दिस, पी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे। HCl इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl जब गैसियस फॉर्म में होता है देन इट्स नेम इज हाइड्रोजन क्लोराइड अ कंपाउंड, but when it dissolve in water to form the aqueous solution then that is called hydrochloric acid। तब उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl is not hydrochloric acid, HCl gas is not acid। I think if you will remember class 9th or class 10th acid base salt chapter, then one question is there, when HCl gas is passed through the dry, ठीक है, लिटमस पेपर, देन इट नॉट शो एनी इफेक्ट, तब वो कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, इट नॉट टर्न द लिटमस पेपर कलर। बट व्हेन HCl पास थ्रू, ठीक है, वेटेड लिटमस पेपर और यू कैन से मॉइस्चरस लिटमस पेपर को पानी में डाल के फिर वही HCl गैस को पास करते हैं, देन इट टर्न्स द कलर ऑफ लिटमस पेपर। वाई? then because HCl in dry form is not an acid, dry form में HCl acid नहीं होता है, HCl is showing their acidic nature in aqueous form in presence of moisture। so यहाँ पे जो HCl गैस है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट अगर यही HCl एसिड हम ले लेंगे दैट इज HCl एक्वस या डाइल्यूट HCl लिख दीजिए, देन द रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। तब आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई द डबल हेडेड एरो इज गिवन देयर कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन बट इट विल बी going to be back in reverse direction when it is having dilute HCl। dilute HCl का मतलब लिखने का हो गया कि it is having aqueous HCl moisturous condition। dilute HCl का मतलब ये मत समझिएगा कि HCl गैस जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है, इसका ये मतलब नहीं है। HCl गैस इज ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन में ये फॉरवर्ड जाएगा एंड डाइल्यूट HCl के कंडीशन में ये बैकवर्ड आएगा। तो अगर मॉइस्चर हम प्रोवाइड कर देंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। सो इन योर NCERT बुक बोथ आर रिटन। NCERT बुक में आपके इसी तरह लिखा हुआ है कि ROH, यहाँ पे लिखा हुआ है HCl गैस एंड नीचे लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl। तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन दिस वे कि यहाँ पे HCl गैस ना लिख के नीचे जो रिवर्स डायरेक्शन में है उस पर डाइल्यूट HCl लिख दें और ऊपर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसमें ROH एंड ब्रैकेट में HCl गैस लिख दीजिए, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो दिस इज रिवर्सिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चरस HCl। नाउ नेक्स्ट, कीटोन। As I informed, ketone can be react with dihydric alcohol। कीटोन डाइहाइड्रिक एल्कोहल में, ठीक है, रिएक्ट करता है एंड सिमिलर कंडीशन एज लाइक एल्डिहाइड। देखिए इसमें भी HCl गैस में फॉरवर्ड जाएगा और यहीं पे आप लिख देंगे डाइल्यूट HCl, तब रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा? बैकवर्ड जाने लगेगा। सो रिमेंबर दिस, डाइल्यूट HCl से बैक जाएगा, HCl गैस से या ड्राई HCl से फॉरवर्ड जाएगा। सो सी इट रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक से रिएक्ट करेगा एंड व्हाट विल बी हैपन, द बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस विल गेट द नेगेटिव, दिस विल गेट द पॉजिटिव। ये मोनोहाइड्रिक से रिएक्ट नहीं करेगा। वन डाइहाइड्रिक कंपाउंड इज टेकन हियर दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन glycol, it is the common name, ethylene glycol is the common name। what will be its IUPAC name? You will give the numbering 1 2, then its name will be ethane 1,2-diol। IUPAC name will be ethane 1,2-diol, common name is ethylene glycol। इथाइलिन पढ़ के ये मत समझिएगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इट इज कॉमन नेम। IUPAC नेम इज ethane 1,2-diol।
सो इथाइलिन ग्लाइकॉल ही आपके में दिया हुआ है, तो आपसे अगर पूछेगा रिएक्शन कीटोन का अल्कोहल के सेंस में तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ही पूछेगा। सो व्हेन कीटोन रिएक्ट with ethylene glycol in presence of dry HCl gas, similar condition, then H2O इथाइलिन ग्लाइकॉल से ये दिखला रहा है रेड डॉटेड से कि H2O निकलेगा, सो OH CH2 से निकलेगा तो OH निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन, और H पॉजिटिव होता है तो ये ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो C ऑक्सीजन वाला जाके कार्बन से अटैच हो रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन जाके कार्बन से अटैच हो रहा है C, एंड जो CH पॉजिटिव है वो जाके ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। सो इट फॉर्म एन एडिशन कॉम्प्लेक्स, ये एडिशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड दैट एडिशन कॉम्प्लेक्स इज साइक्लिक प्रोडक्ट। इन दोनों में यही डिफरेंस है, एल्डिहाइड नॉन साइक्लिक प्रोडक्ट दे रहा था एंड इट गिव अ साइक्लिक प्रोडक्ट, इट फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट, ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है। इट इज नॉट हैविंग एनी साइक्लिक प्रोडक्ट। एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन विथ अल्कोहल में दो डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस, एल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू फॉर्म नॉन साइक्लिक प्रोडक्ट, एंड कीटोन रिएक्ट विथ, ठीक है, dihydric alcohol and form a cyclic product. This cyclic product is called केटल। केटल देखिए दो नाम मिलेगा, एक मिल रहा है केटल और एक मिलेगा कीटोल। अभी एक नाम और मिलेगा कीटोल, कीटोल अलग है, केटल अलग है। दिस टर्म इज गिवन इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज केटल। अब क्वेश्चन आएगा केटल, देखिए एल्डिहाइड से बना तो एसिटल कहा गया, एल्डिहाइड से बना एसिटल, कीटोन से बना केटल। सो व्हाट यू विल राइट, when aldehyde when ketone react with ethylene glycol or dihydric alcohol in presence of dry HCl gas, then it form a cyclic product. That cyclic addition product is called केटल। केवल केटल भी कह सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल तो क्योंकि उसका ही सब्स्टिट्यूट है, उसका ही डेरिवेटिव है, दैट्स वाई केटल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो भी वहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा उसका नाम हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट विल बी केटल। नाउ सी, दिस इज द अल्कोहल। नेक्स्ट वन, दैट इज the most important, addition of ammonia and its derivative. So addition of ammonia and derivative, so first of all whatever is showing here that is its mechanism, ये इसका mechanism है। ठीक है, इसको हमको कहीं लिखना नहीं है बट समझना है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि आप बाद में पूछेंगे कि सर ये एडिशन कैसे हुआ, इसको सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए, व्हेन अमोनिया, ये अमोनिया है NH3 रिएक्ट विथ एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नाउ इन अमोनिया H इज रिमूव फ्रॉम हियर, पहले H यहाँ से रिमूव होगा, सो H विल बी प्लस, इट विल बी अटैच विथ ऑक्सीजन C, OH बन गया, एंड NH2 विल बी निगेटिव, सो इट कम्स इन अटैच विथ कार्बन, तो NH2 आके कार्बन पे बना। ठीक है, दिस इज द इंटरमीडिएट, ये पता किया गया है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है। नाउ व्हेन इट हीटेड, अब ये हीट किया जाएगा, अगर हीट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये रहेगा एडिशन प्रोडक्ट। व्हेन इट हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, देन OH फ्रॉम कार्बन and H from nitrogen is eliminated in the form of, ठीक है, in the form of water, means the second step is dehydration, and कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, नाइट्रोजन की, बोथ विल बी कंबाइंड बाय डबल बॉन्ड, सो C डबल बॉन्ड कम्स इन अटैच, डबल बॉन्ड आके क्या हो गया, अटैच हो गया। सो व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अमोनिया, अमोनिया रहे या उसका डेरिवेटिव रहे, कोई भी रहे,
ammonia or its derivative, then it produce a complex, an addition complex, which on heating give the final product, जो हीट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट देता है. इफ दैट विल बी अमोनिया, अगर वो रिएक्टेंट अमोनिया है, देन द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड आइमाइन. आइमाइन जो हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन मेथड में, स्टीफन रिएक्शन में डबल बॉन्ड भी है और अमाइन ग्रुप भी है. सो आइमाइन या आइमीन जो भी पढ़ना जाए. सो पहला रिएक्शन अमोनिया के साथ है, दैट इज व्हेन ammonia react with aldehyde or ketone, then it form an intermediate complex which on heating undergo dehydration to produce imine. क्या बनाता है? imine बनाता है. ठीक है. सो इन होल प्रोसेस व्हाट यू आर सीइंग, जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको हीट करके फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं. हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है. नाउ इन दिस प्रोसेस व्हाट यू आर सीइंग, फाइनली जो हमको चाहिए उसके लिए क्या प्रोसेस हो रहा है? पहले एडिशन हो रहा है, फिर रिमूवल हो रहा है. सो रिमूवल में निकल क्या रहा है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. निकल क्या रहा है? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन. सो ये 2 H किसका पार्ट था? These 2 H आर पार्ट ऑफ अमोनिया. पहले H उससे अटैच हुआ, फिर वहां से निकल गया. सो दीज 2 H आर पार्ट ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन. सो हम फाइनल प्रोडक्ट, ये मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा था, हम फाइनल प्रोडक्ट अगर लिखना चाहें सो कैन वी से, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अमोनिया या उसके डेरिवेटिव में से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्डिहाइड कीटोन में से ऑक्सीजन निकाल दीजिए एंड डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को अटैच कर दीजिए एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड या कीटोन है. ठीक है. और जो अमोनिया है NH3. सो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें से 2 H निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों H इसी का निकल रहा है बाद में, और इसका ऑक्सीजन हटा दीजिए एंड दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए डबल बॉन्ड से. सो प्रोसेस में अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है? सिंपल सा अमोनिया या उसका जो भी डेरिवेटिव है उसमें से 2 हाइड्रोजन हटाना है, एल्डिहाइड कीटोन में से ऑक्सीजन हटाना है और डबल बॉन्ड से रेस्ट वाले को अटैच कर देना है एंड यू विल गेट द एडिशन कॉम्प्लेक्स, दैट इज योर प्रोडक्ट. लेकिन इफ अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बताता कि ऐसे 2 हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन हटा के जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो ऑक्सीजन के जगह पे बाकी जो बचा हुआ है वो आके अटैच हो रहा है. सो दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन. कि ऑक्सीजन के जगह पे रेस्ट वाला आ रहा है, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन. हाउ यू आर सेइंग दिस इज एडिशन? इसका नाम कैसे जस्टिफाई हो रहा है कि ये एडिशन है? इसलिए पहले आपको ये स्टेटमेंट बताया गया कि पहले ऐड होता है, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे रिमूव होता है. सो जो प्रोडक्ट हमको बन रहा है वो एडिशन प्रोसेस से के बाद ही बन रहा है, इसलिए इसको एडिशन कहते हैं. नाउ सी, अब यहाँ पे था अमोनिया, अमोनिया से बना आइमीन. अब इसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. डेरिवेटिव का मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके कुछ ना कुछ आया हो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, हाइड्रोजन डिस्प्लेस, ये पहला अमोनिया से रिएक्शन है NH3. दूसरा अमाइन से रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन के जगह पे R आ गया. ठीक है. तीसरा हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ गया. चौथा हाइड्रोजीन से रिएक्शन है, एक H के जगह पे NH2 ग्रुप आ गया. पांचवा फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन है, फेनिल हाइड्रोजीन, यानी यहाँ पे एक H के जगह पे ये फेनिल हाइड्रोजीन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है. फेनिल हाइड्रोजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिखना है वहाँ पे ध्यान दीजिए कहाँ पे गलत है. NH
NH2, फिर NH रहेगा और NH में N से बेंजीन रिंग अटैच रहेगा। NH में N से बेंजीन रिंग अटैच रहेगा। सो यहाँ पे एक NH मिसिंग है, एक NH मिसिंग है, वहाँ पे आपको एक NH ऐड करना है बिकॉज इट इज हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन कहते हैं NH2 को, और यहाँ पे भी हाइड्रेजीन है, बस हाइड्रेजीन में फेनिल लग गया है तो यहाँ पे एक H हटा करके बेंजीन रिंग जोड़ देंगे, दैट इज फेनिल हाइड्रेजीन। तो जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज 2,4-DNP, डेरिवेटिव नहीं, दिस इज 2,4-DNP, ये 2,4-DNP है, और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड 2,4-DNP डेरिवेटिव। सो 2,4-DNP फुल फॉर्म इसका देखिए, 2,4-DNP इसका फुल फॉर्म है 2,4, D से डाई, N से नाइट्रो और P से फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP। तो जो अभी आपने देखा, अगर आप इतने को देखिए बाकी भूल जाइए, तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, NH2 NH पे बेंजीन रिंग, दैट इज फेनिल हाइड्रेजीन। सो NH2 NH पे बेंजीन रिंग, सो फेनिल हाइड्रेजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये फेनिल हाइड्रेजीन हो गया। फेनिल हाइड्रेजीन में जो फेनिल ग्रुप है इसमें 1 2 3 4 दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है 2 बार, दैट्स वाई इट्स नेम इज देयर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। फेनिल हाइड्रेजीन में दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सो सी, तीन नाम एक जैसे हैं, केवल NH2 लिखेंगे, सो ये हो जाएगा हाइड्रेजीन। इसमें एक H हटा करके बेंजीन रिंग लगा देंगे, NH2NH और 1 बेंजीन रिंग, तब ये हो जाएगा फेनिल हाइड्रेजीन। तब इसको कहेंगे फेनिल हाइड्रेजीन, क्योंकि इसमें हाइड्रेजीन में बेंजीन रिंग अटैच हो गया। नाम से पढ़िए, हाइड्रेजीन में बेंजीन रिंग अटैच हो गया, सो फेनिल हाइड्रेजीन। एंड नेक्स्ट आपका जो है, इस फेनिल हाइड्रेजीन, जो आपका फेनिल हाइड्रेजीन था, इस फेनिल हाइड्रेजीन में जो फेनिल है, फेनिल पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, एक लगा दीजिए सेकेंड पोजीशन पे और एक लगा दीजिए फोर्थ पोजीशन पे। सो अब इसको कहेंगे 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। तो मेक इट क्लियर, हाइड्रेजीन NH2 देन आफ्टर फेनिल हाइड्रेजीन, तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, ध्यान से देख लीजिए, इस NH2 के बाद NH लगाना है दोनों में, तब ये बनेगा, ठीक है। बेंजीन रिंग देखिए हम भूल के बनाना, यहाँ बेंजीन रिंग रहेगा, तब ये बनेगा फेनिल हाइड्रेजीन। बस और कुछ चेंज नहीं करना है, केवल NH ऐड कर देना है बीच में। एंड इसको कहेंगे 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। तो आई थिंक आप लोग अब ये बना लेंगे प्रोसेस, मतलब कि अगर आता है 2,4-DNP का स्ट्रक्चर। एंड लास्ट वन जो है, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ये जो है NH2NH, मतलब हाइड्रेजीन था NH2NH2, इस NH2NH2 में से एक H हटा और यहाँ आके अटैच हो गया अमाइड ग्रुप CONH2, एक H हटा और अमाइड ग्रुप आके अटैच हो गया, देन दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। सो हाइड्रेजीन
NH2 है, फेनिल हाइड्रेजिन NH2 NH पे बेंजीन रिंग है, एक H हटा के बेंजीन रिंग है, 2,4-DNP। जो फेनिल हाइड्रेजिन है उसमें दूसरे और चौथे नंबर बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप है, और सेमी कार्बाजाइड हाइड्रेजिन में एक H हटा के अमाइड ग्रुप अटैच कर देते तो सेमी कार्बाजाइड होता है। अभी मैंने केवल आपको रिएक्टेंट के बारे में बताया कि क्या क्या रिएक्टेंट यूज हो रहा है। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम पढ़ रहे हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, सारे का प्रोडक्ट यही बनेगा, डबल बॉन्ड NH अटैच होगा। लेकिन पहले रिएक्शन किससे किससे कराना है, तो रिएक्शन अमोनिया से अमाइन से, डेरिवेटिव है, पहला अमोनिया है बाकी इसके डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है H हटा के कुछ अटैच हो जाना, तो H हटा के एल्किल अटैच हो गया, अमाइन बन गया, H हटा के OH अटैच हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया, H हटा के NH2 अटैच हो गया, हाइड्रोजन बन गया, NH2 में से H हटा के बेंजीन अटैच हो गया तो फेनिल हाइड्रोजन बन गया, फेनिल हाइड्रोजन में बेंजीन के ऊपर नाइट्रो आ गया तो 2,4-DNP बन गया, और हाइड्रोजन में H हटा के अमाइड ग्रुप अटैच हो गया तो वो हो गया सेमी कार्बाजाइड। तो अभी मैंने केवल आपको रिएक्टेंट का नाम बताया। सो अमोनिया डेरिवेटिव में किसका किसका रिएक्शन कराना है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमाइन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ फेनिल हाइड्रोजन, reaction of aldehyde ketone with 2,4-DNP and reaction of aldehyde ketone with semi carbazide। इतना हम पढ़ेंगे तब हमारा अमोनिया वाला पार्ट कंप्लीट होगा। अभी हम अमोनिया वाला नहीं पढ़े हैं, ठीक है। सो दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो टुडे वी हैव डिस्कस द एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ एल्कोहल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और जो हमको टर्म नए नए मिले, केटल मिला, केटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, एंड साइनोहाइड्रीन क्या होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्रेजिन, फेनिल हाइड्रेजिन, 2,4-DNP एंड सेमी कार्बाजाइड, ये सारे टर्म आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारे टर्म वहां पर है कि सेमी कार्बाजाइड क्या होता है। व्हेन इन हाइड्रेजिन वन